झालेला आहे. ठीक आहे, काही करायचं गरज नाही. Very good afternoon to all of you. Sorry for being late. Today we have a meeting, that's why. So today we are learning a very important topic, that is how to design a drug. Then what are the drug designing softwares available, whether I can design any drug or not. Then 2D structure of the drug and 3D structure of the drug. These are the major topics that we will be covering today. So before going into a drug, we'll take a little glance of the last day what we have learned. We have learned in the last session that there is a drug bank. Okay, this drug bank is very important resource where you can get information about the drugs which are available in the market, as well as all those experimental or in the investigation or even rejected drugs also. We have also seen that drugs needs to be authenticated through number of clinical trials, and that data is also available. Then we have also seen that drugs needs to be analyzed for their features, characteristics and properties by using different methods. One of the method is Lipinski rule. Then we also seen that in a drug bank that how drug interaction plays a very important role with the other chemicals, means other drugs, and how we need to take that drug if you are taking some other medications and all. So this was our first topic of the drug pharmacogenomics part or drug part. So today we learn a very important, that is the designing of a drug. Now whenever I am saying the designing of a drug, what does this mean? This means that uh, we need to design a drug in such a way that it should follow some rules of Lipinski. Okay, it should follow some rules of Lipinski. So we first see what are the Lipinski rules are there. So for that we will go for IIM Supercomputer Bioinformatics Service. Just to record this website. This is the website. So this is the website of it. Just recording your data. SCF Bio IIT. This is the website which will give you Lipinski rule of 5 data. Okay, this is very important. So whenever you are designing any drug, you need to check out whether the drug follows Lipinski rule of 5 or not. So this website will help you get into that data. So after getting into this Lipinski SCF Bio data, here you have a software tool link. In the software tool link, you have a drug design link. Click onto this. And once you click onto that, just go scroll down, and at the bottom you will see Lipinski rule. This is the Lipinski filter. This is what you want. So Lipinski rule, what does this say? So whenever we are designing any drug,
any molecule which needs to be administered in a subject or like human or animal, that needs to follow some rules. Okay, Lipinski rule. Okay. Now, what is this Lipinski rule? These are the rules of five. Actually, there are five rules. Okay, and that distinguishes between drug and non-drug like molecule. So, whenever we are designing any chemical, every chemical is not the drug. Okay, some of the chemicals are only act like the drug. That's why we need to distinguish chemical between a chemical and the drug. So it predicts the high probability of success and failure. Okay. And so we need to find out what is the drug likeness. If your molecule, what you are designing to drug designing software, that should follow the features of drugs. Okay. And whenever they are following the features of the drugs, they need to comply with these five rules. Okay, what are the five rules? We'll learn one by one. But at least out of these five rules, your drug should follow two or more of the rules. Okay, so out of the five, your chemical must follow two or more rules. Then and then only it will become a drug. So when a chemist, especially organic chemist and inorganic chemist, whenever they are designing any molecule, as per the requirement, they used to screen this designed molecule for Lipinski rule. Okay, and they have to follow at least two or more of that. Now, what is that? What are those rules? First, we check it out. First is the molecular mass less than 500 Dalton. Your drug, whatever your drug you are synthesizing, should have a small size. Whenever I am saying 500 Dalton, it's a small one. In the last lecture also I have mentioned you that the drug which is synthesized artificially needs to have a molecular weight less than 500 Dalton. Okay, so that's why they become a small molecule. So every artificially synthesized drug needs to be smaller in size. Means it should have a molecular mass less than 500 Dalton. Then it should have a high lipophilicity. Okay, lipophilicity means what? Whenever you are designing any drug, that drug needs to be lipophilic, means lipid loving. Okay, it needs to be lipid loving. They should not remain water loving. If they are water loving, then they will get absorbed as soon as it comes into your body, because our body is 90% water. So at every place they will get absorbed very easily. Hence, they can get concentrated at a localized region. That's why drug never remains hydrophilic. They always remain lipophilic. Means they love lipids. And why this is so? Because whenever I'm saying lipophilic, they love the cell, because cells is having a coating of the lipids, and through which very easily drug can be transported inside, and that's why it is having a lipophilicity. Now to express the lipophilicity value, we want to express in some kind of a formula. For that there is a formula of log P value. So lipophilicity is expressed in a less than 5 parameter. If your log P value is more than 5, then it is a hypophilic molecule. Or simply it can be said that it is not lipophilic. Then, so first thing what we have learned is that for every chemical which is acting like drug needs to be very small, having a 500 Dalton or less than 500 Dalton size. Then it should have a high lipophilicity. They should have a love for the lipids. Then your drug should have less than 500 bond donors. Okay, so whenever you are designing a drug with the functional group, okay, you need to add functional group to the drugs, and that drugs functional group, total functional groups should not have less than five, should not have less than 5 hydrogen bond donors. Okay, so it should have less than 500 bond donors. Okay, should not have more than 500 bond donors, or it should have less than 10 hydrogen bond acceptors. Now, why this is so? Because if they are having more than 500 bond donors and less than 10 hydrogen bond acceptors, what will happen? The drug will interact. If they are having more than this, they will interact very strongly with the molecules. Okay, interacting molecules. Resultant, the reaction or the interaction will become irreversible. Okay, so whenever we are designing a drug, drug action should remain reversible.
Okay, if your drug action is not reversible, then it will become a toxic, or it may bring about a very high level of side effects. Hence, drug needs to have a very limited number of hydrogen bond donors and hydrogen bond acceptors. Okay. I am audible to all of you, na? Is there any problem? No, sir. Yeah, No, okay, sir. okay, okay. Then the last point is the molar refractivity. That should be between 40 to 130. This is very important for in the terms of synthesis of the drug. Okay, so molar refractivity should remain in between 40 to 130. Okay, so these are the major 5 rules that we need to follow whenever we are going for a drug design. Okay. So we'll come back to this part again after some time when we'll design a drug. Okay. Now to design any drug, okay. Now whenever we wanted to design any drug, some points we need to understand. First thing is that we should know sp2, sp3 hybridization. Okay. We should know aromaticity. We should know tautomerism. Okay. Spelling may be wrong. Okay. We should know tautomerism. So these things first we should know. Means whenever we are designing a drug, you should have a very good organic chemistry knowledge, okay, or inorganic chemistry knowledge. Okay, you should have both. You should have a command on these two fields, organic and inorganic chemistry, because based on that only you will be able to understand how to design a drug for their functional groups and all. Then whenever we are designing a drug, we are designing drug based on the two types. One is known as de novo drug design, okay, de novo drug designing, and other is SBDD, that is structure based drug design. So whenever we are trying to design any drug, we need to we need to go with these two types of approaches, that is DDD, that is de novo drug designing, and SBDD, structure based drug designing. You can adopt any one of these methods. Most of the organic chemists who works for the pharmaceutical company, they go for the de novo drug design. Means they prepare a library of the drugs. Okay, what they do? They prepare the library of the drugs. Whenever I am saying drugs, means it has been assured that they have followed the Lipinski rule. Okay. So DDDD means library of drugs they will prepare, and this library of drugs then can be targeted. Okay, then it can be targeted to the proteins. Okay, that can be used to target the proteins. Clear? So structure-based drug designing is there. Library of drug targeted to the proteins are there. Okay. So you can go by any approach. Okay. But right now, because we are very what you can say new to this field, we don't know any more detail about it. We can go simply by following a template. Okay. Yeah. और उसको लीड भी कहा जाता है, लीड डिजाइन. You can go by lead designing. You can search any very close close drug which is of your interest, and then you can go for the lead design. I will let you know. Okay. So have you understood what are the points? How to design a drug? First thing, you need to have a Lipinski rule of file that we can get from this SCL Bio. Then we should know all these parameters: sp2, sp3 hybridization, aromatism, tautomerism, organic chemistry, and inorganic knowledge that you should have. Then you can design a drug. The approach for drug designing is of two types. One is de novo drug designing, that is new और untargeted. ठीक है, यहाँ पे हमको किसके खिलाफ बनानी है वो हमको पता नहीं रहती. While in SBDD, structure based drug designing, we know the target. Okay, we know the target. That's what known as structure based drug designing. So new और untargeted, इससे हम एक लाइब्रेरी बना सकते हैं. ठीक है, that is DD. बहुत सारे ड्रग्स बन जाएंगे और आप डायरेक्टली को टारगेट कर सकते हैं. एसबीडीडी में स्पेसिफिक हो जाता है, इस टू द पर्टिकुलर प्रोटीन अगर आपको कोई ड्रग बनाना है किसी प्रोटीन के खिलाफ तो वो एसबीडीडी हो जाएगा. ठीक है.
Then very important thing is that whenever we are designing, okay, whenever we are designing, we are generally designing it in a two-dimensional form first. Okay, हमेशा याद रखें, हमेशा उसको two-dimensional form में produce करेंगे, and then we will convert. Then we will convert it into three dimension. So जब हम उसको 2D में फॉर्म करेंगे, वो एक क्रूड फॉर्म रहेगा, ठीक है, क्रूड फॉर्म रहेगा, और हम उस क्रूड फॉर्म से उसको क्लीन करें, दैट इज क्लीन स्ट्रक्चर बनाए उसका, और क्लीन स्ट्रक्चर के बाद में हम उसको कमांड देंगे, ठीक है, हम उसको एक कमांड देंगे टू गो फॉर 3D कन्वर्जन, ठीक है। तो जब आपका क्रूड फॉर्म क्लीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम एक कमांड देंगे दैट यू गेट कन्वर्टेड टू 3D स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज द 3D स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द 2D स्ट्रक्चर? 2D स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग जो होता है वो आप लैब आप अपने सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, डिजाइन करते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर में डिजाइन करते हैं, ठीक है, इन 2D फॉर्मेट, बट दे डोंट हैव अ एनर्जी ऑफ दिस, ठीक है। 2D फॉर्म का जो ड्रग बनता है तो उसका खुद का एनर्जी नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कब आएगा जब वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग अ 2D एंड 3D देयर इज अ डिफरेंस। 2D सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया हुआ ड्रग में खुद का उसके पास में एनर्जी कैलकुलेशन प्रोग्राम नहीं होता, ठीक है, यानी उसकी खुद की मिनिमम एनर्जी जो होती है वो नहीं रहती, ठीक है, उसकी जो खुद की मिनिमम एनर्जी होती है वो नहीं रहती, ठीक है। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको कि आपने कागज पे डॉग निकाला, ठीक है, डॉग निकाला या कैट निकाली या माउस निकाला, वो जिंदा रहती है क्या? Is that dog, cat, mouse remains live? जब आप किसी को पेज पे निकालते हो तो रहता है नहीं सर, उसके अंदर कोई एनर्जी थोड़ी रहती है ना, सिर्फ आपने उसको स्केल से ड्रॉ किया है, तो सेम उसी तरह होगा। तो 2D स्ट्रक्चर पर आपने ड्रॉ तो किया ना, आप किसी को दिखा सकते हो कि दिस इज द पिक्चर, आई वांट समथिंग लाइक दिस, तो आप दिखाते हो ना, डॉग, मुझे डॉग चाहिए, मुझे कैट चाहिए, मुझे माउस चाहिए, आप किसी को स्ट्रक्चर दे दो, उस हिसाब से बना के दो मुझे, और फिर अल्टीमेटली उसके अंदर एनर्जी आ जाता है अगर वो लाइव होगा। तो 2D स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किया जा सकता है सॉफ्टवेयर में, पर उसके पास में अपनी खुद की मिनिमम एनर्जी कैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा एल्गोरिदम यूज करेंगे, ठीक है, एक ऐसा एल्गोरिदम यूज करेंगे जो 3D स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, 3D स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकता है। और 3D स्ट्रक्चर डिजाइनिंग यानी क्या ऑफ द ड्रग, यहाँ पे क्या होगा कि हर एक एटम जो आपने 2D में बनाया, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बनाया, वो हर एक एटम एक फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होगा, साथ ही साथ में उसके कोर का भी पार्ट होगा। कोर यानी समझता है जो सेंट्रल पार्ट होगा, और फंक्शनल ग्रुप यानी जो उसके साइड वाले ग्रुप्स होते हैं, है ना, जैसे बेंजीन में बेंजीन की रिंग होती है और उसके बाहर में जो अपने एच लगा देते हैं वो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, समझ रहे? इस तरह से आप उनके एटम्स और फंक्शनल ग्रुप्स लगाएंगे। ये हो जाने के बाद जब आप इसको एल्गोरिदम लगाएंगे 3D स्ट्रक्चर का, तो होगा क्या, यूर your 2D structure will get converted into 3D, और यहाँ पे होगा क्या, this will become an arrangement of atoms। यहाँ पे क्या होगा, arrangement of atoms as per repulsive and attractive energy they will assemble, okay। जैसे जैसे ही आपने 2D को 3D में कन्वर्ट किया, यहाँ पे क्या होगा, देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एज पर रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव एनर्जी। तो क्या होगा कि जितने भी एटम्स आपके ग्रुप में है, फंक्शनल ग्रुप में है, वो खुद को इस तरह अरेंज करेंगे कि वो खुद को मिनिमम एनर्जी में पुट अप करेंगे, ठीक है, दैट इज मिनिमम एनर्जी। जैसे ही मिनिमम एनर्जी में वो पुट अप करेगा तो वो नेचर को कूल डाउन कर रहा है, यानी नेचर रिजेंबल हो जाएगा, नेचर रिजेंबल हो गया, यानी वो अभी तो आपके पास में 3D फॉर्म में है, ठीक है, 3D फॉर्म में है, ओरिजिनल है क्या आपके पास में, ओरिजिनल ड्रग है क्या लैब में सिंथेसाइज किया हुआ, नो,
बट इट इज इन अ 3D फॉर्म। बट ये पूरा का पूरा वैसा है जैसा नेचर में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उसको एनर्जी ऑप्टिमाइज कर दिया है इन द मिनिमम एनर्जी। तो हमेशा याद रखिए स्टेप्स क्या रहेगी। आप किसी भी ड्रग को 2D में कन्वर्ट कर बनाएंगे, उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। 3D में आप क्या करेंगे? एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन करके आप उसको किस फॉर्म में लाएंगे? मिनिमम एनर्जी के फॉर्म में लाएंगे। एंड नाउ इट इज रेडी, ठीक है। नाउ इट इज रेडी। तो अब वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रोसीजर है जो हम कर रहे हैं। तो 2D बनानी है, फिर उसके बाद 3D बनानी है, ऑप्टिमाइज करना है, एनर्जी कैलकुलेशंस करने हैं, और तब जाके आपका ड्रग रेडी हो जाएगा। कोई मुझे बताएगा कि 3D स्ट्रक्चर कौन से फॉर्मेट में रहता है? कौन से फॉर्मेट में सेव करते हैं अपन? प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर कौन से फॉर्मेट में सेव किया था? नहीं नहीं नहीं, कौन से फॉर्मेट में? PSD पी SD PHD नहीं, क्लोज हो पर गलत है। PSD नहीं, कौन सा फॉर्मेट है? PDB, ठीक है, प्रोटीन डेटा बैंक फॉर्मेट। तो आपको इस 3D स्ट्रक्चर भी कौन से फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा? PDB, क्योंकि आपका ड्रग भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में PDB फॉर्मेट में सेव होता है। तो आपका प्रोटीन भी PDB फॉर्मेट में सेव होता है, उसी तरह ड्रग को भी आपको PDB फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। सब समझ में आ गया? क्या क्या हमको प्रोसीजर्स करनी है? सबसे पहले आपको अपना ड्रग बनाना है। ड्रग बनाने की प्रोसीजर्स मैंने आपको समझा दी, 2 टाइप की है, डी नोवो ड्रग डिजाइनिंग या फिर एसबीडी, ठीक है। आप दोनों तरीके से ड्रग बना सकते हैं। ड्रग बनाने का प्रोसीजर ऐसा है कि सबसे पहले आप 2D फॉर्म उसका क्रिएट करिए और 3D में कन्वर्ट करिए। 3D में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका एनर्जी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एनर्जी कैलकुलेशन के लिए उसको मिनिमम एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनिमम एनर्जी कैलकुलेशन करने के बाद देखिए कि वो सही में उसकी उतनी मिनिमम एनर्जी है क्या। अगर वो मिनिमम एनर्जी जस्टिफाइबल है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी जस्टिफाइबल है, तो इसका ये मीनिंग होता है कि वो लैब में सिंथेसाइज किया जा सकता है, ठीक है। मिनिमम एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि क्या हम उसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं या नहीं। अगर एक मिनिमम एनर्जी माइनस में है, -15 किलो कैलोरी पर मोल, ये उसका यूनिट है, तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा क्योंकि उसको एनर्जी बहुत कम लगेगी, -15 किलो कैलोरी पर मोल लगेगी। पर अगर ये ऐसा ले रहा है, समझ लो 1500 किलो कैलोरी, माइनस नहीं, 1500 किलो कैलोरी, यानी ये ड्रग को बनाने के लिए 1500 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी पुटअप करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि ये बहुत एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है, इसके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगा, रिजल्टेंट ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अनस्टेबल होगा तो डेफिनेटली उसके एक्सपायरी जो है वो शॉर्ट लगेगी, यानी ये काम में नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए हम उसको कंप्यूटेशनली बता सकते हैं कि ये लेबोरेटरी में बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बनेगा तो कितने दिन तक वो काम करेगा, कितनी स्टेबिलिटी। और इसीलिए अब बहुत ज्यादा स्पीडली हम कोई भी ड्रग को डिजाइन कर पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ अगर हम देखें, हिस्ट्री ऑफ ड्रग डिजाइन, ठीक है, तो उसमें जनरल प्रोसीजर क्या थी? सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट था वो लैब सिंथेसाइज करता था, ठीक है, यानी वो लैब में सिंथेसाइज करके फिर उसकी चेकिंग करते थे, ठीक है। अब ये सारी चीजें हट गई है, ये आप करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा पार्ट जो है पहले आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इजीली वो कर सकते हैं। इजीली वो करने के बाद आप आराम से उसको अपलोड कर सकते हो फॉर द फर्दर स्टडीज, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर है जिससे आप आराम से ड्रग डिजाइन कर सकते हैं। अब ड्रग डिजाइन ही हमारा एम नहीं है यहाँ पे, और एक चीज याद रखिए, हम यहाँ पे प्रोटीन को भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी प्रोटीन का पेप्टाइड बनाना है, मान लीजिए, ठीक है, प्रोटीन पेप्टाइड डिजाइनिंग करनी है, तो प्रोटीन का पेप्टाइड डिजाइनिंग करने के लिए भी आप आराम से बायोइनफॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रग डिजाइन टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। Along with that, you can also design DNA of any molecule, ठीक है। आप molecular sequence ले लीजिए DNA या RNA फॉर्म में, and then you can design
DNA of that molecule also. That too in its purity form. ठीक है? So ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपका ड्रग, आपका DNA, आपका प्रोटीन या आपका पेप्टाइड का एग्जैक्ट एनर्जी कितना है, ठीक है? दैट इज नोन एज एनर्जी कैलकुलेशन। और इसीलिए ये ड्रग डिजाइनिंग होता है, ठीक है? ड्रग डिजाइनिंग का मेन एम ही है कि आपको उसकी एनर्जी कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर आप एनर्जी कैलकुलेशन खुद कर पाएंगे तो ही आप अच्छे ड्रग डिजाइनर या अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट बन सकते हो, ठीक है? तो हमारे मेन एम आज ये है कि हम ड्रग बनाएंगे, पेप्टाइड्स बनाएंगे, डीएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे और उसको 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, इसका एनर्जी कैलकुलेशन। दिस इज आवर एम। नाउ व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल? हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं? हम टूल्स देख लेते हैं। अगर हम कमर्शियल मोड में देखेंगे, जहाँ जितने भी कमर्शियल कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है, तो उनके पास में केम ऑफिस ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? केम ऑफिस, ठीक है? ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, ठीक है? यानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर, ठीक है? अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाला चाहिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, तो आप केम स्केच यूज करेंगे, जो आज हम करने वाले हैं। हम केम ऑफिस भी करेंगे, हमारे पास केम ऑफिस है, ठीक है? तो हम केम ऑफिस भी दिखाएंगे, पर ये आपको शायद मिलेगा नहीं, ठीक है? आपके पास केम स्केच रहेगा, तो आप केम स्केच से स्टार्ट करें, ठीक है? तो पहला जो है वो है केम स्केच और दूसरा है केम ऑफिस सॉफ्टवेयर, कमर्शियली और पेड है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करें। ये है सॉफ्टवेयर, दैट इज केम स्केच। ठीक है, ये वेबसाइट याद रख लीजिए या फिर डायरेक्टली आप नाम भी लिख सकते हैं, या फिर वेबसाइट याद रख लीजिए acdlabs.com, ठीक है? यहाँ से आप ये फॉर्म्स डिटेल पूरा भर दीजिए, फर्स्ट नेम, ईमेल, कंट्री एंड लास्ट नेम, कंपनी और, ठीक है? कोई भी कंपनी का नाम डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लाइसेंस को स्क्रॉल डाउन कर दीजिएगा, आई एग्री दैट लाइसेंसिंग टर्म एंड डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, ठीक है? 64 बिट्स का आपका लैपटॉप कंप्यूटर में विंडोज होना चाहिए, ठीक है? एंड देन इट विल वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है? आसान है, ये डाउनलोड हो जाएगा और पर्सनली या एकेडमिक यूज के लिए आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? देन लिंक आई थिंक इसकी जो है वो ईमेल पे आएगी आपको, ईमेल पे आप चेक करिएगा, ईमेल पे लिंक आएगी। तो अल्टीमेटली वो सॉफ्टवेयर आपके अपने डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, चलिए उसको पढ़ते हैं। केम स्केच, ठीक है? इसका फ्रीवेयर वर्जन, ठीक है? बाद में हम कमर्शियल वाला भी देखेंगे, पर क्योंकि आपको ये यहाँ से करना है इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है? इसको बंद कर दीजिए, ओके करिए। हाँ, अगर आपको टिप्स चाहिए तो आप टिप्स यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है? धीरे धीरे हर एक टिप को पढ़ते पढ़ते आपको ये सॉफ्टवेयर समझ में आएगा, ठीक है? एटलीस्ट आधे से पौन घंटा आप इस सॉफ्टवेयर को दे दीजिए, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर में 3 लिंक है, वन है वन केम स्केच, फिर 2 डेटाबेस, ठीक है? और फिर है 3i लैब, ठीक है? ऐसे 3 है, पर अभी हमारे क्योंकि फ्री वर्जन है तो सिर्फ वन केम स्केच ही काम करेगा। वन केम स्केच आपके पास अब रेडी है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले किसी भी ड्रग को डिजाइन करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको उसके पीरियोडिक टेबल आपको पता रहना चाहिए। तो ये है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है? पीरियोडिक टेबल में जिस भी केमिकल से, सॉरी जिस भी एटम एलिमेंट से आपको ये बनाना है, ड्रग बनानी है, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं सोडियम क्लिक कर रहा हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट सोडियम आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है? तो आप सोडियम सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सोडियम वहाँ पे आना शुरू कर देगा। तो जो जो आपको आइटम चाहिए, एलिमेंट चाहिए, वो आप यहाँ से एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन आपको समझ गया। फिर बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट आपके इस एरो के ऊपर में देखिए, आपके इस एरो के ऊपर में सीसी दिख रहा है। एरो हिला रहा हूं तो आपको सीसी दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ सी सिलेक्ट किया। आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो। देखिए जब बाय डिफॉल्ट मैंने एफ लिया तो हमेशा क्या आएगा, एच एफ एच एफ एच एफ एच एफ, ठीक है। सो आप कौन सा एलिमेंट या आइटम सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन आएगा। फिर यहाँ पे एक मोड है, दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सिलेक्ट मोड या लासो या सिलेक्ट मोड, ठीक है, लासो मोड। तो ये लासो मोड में क्या होता है ना, आप किसी एटम को सिलेक्ट करना है तो लासो मोड से उसको सिलेक्ट करिए। मैंने क्या किया, लेफ्ट बटन दबा के रखी माउस की और इसके खिलाफ इसके सराउंडिंग में सर्कल कर दिया। नाउ यू कैन सी ऑल एटम्स हैव बीन सिलेक्टेड। नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड। क्लियर? समझ रहे हैं सबको? तो पहला पॉइंट समझा, आपके पास में पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट्स आप उससे ले सकते हैं। फिर आपके पास में है एलिमेंट की सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें और है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सारे दिखते हैं यहाँ पे, ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन ये पार्ट कवर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है ड्रॉ मोड, ठीक है। ड्रॉ मोड में देखिए, आप अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने है, इमेज ड्रॉ करनी है, कुछ लिखना है, तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ मोड भी है। यानी आपको कुछ लिखना है, टाइप करना है या स्ट्रक्चर्स डालने हैं, डिजाइन बनानी है, तो आप देखिए डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ डिजाइन बनानी है या फिर एरो जिगजैग दिखाने हैं आपको, देखिए, तो इस ड्रॉ मोड में भी आप जा सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शंस चाहिए रहते हैं आपको। केमिकल रिएक्शंस अगर आपको बनानी है तो यू वांट सम सॉफ्टवेयर टूल्स बनाओ, तो ये सॉफ्टवेयर है जो आपको वो बना के दे सकता है। और अभी हम उसमें नहीं जा रहे, हम स्ट्रक्चर मोड में। देन यहाँ पे हम ड्रॉ नॉर्मल में, ये ड्रॉ कंटिन्यूस है और ये ड्रॉ चेंज है, ठीक है। देखिए अभी हम ड्रॉ नॉर्मल में, मैंने लेफ्ट क्लिक बटन दबा के रखी है और मैंने मेरे माउस को थोड़ा सा खींचा है, देखिए ऑटोमेटिकली CS3 CS3 आ गया। देखिए मैं खींचते जा रहा हूँ और स्ट्रक्चर बनते जा रहा है। ये मेरा लेफ्ट क्लिक का बटन है जो मैं प्रेस करते जा रहा हूँ, सर्कल आने के बाद में पुश अप कर ले रहा हूँ या पुश डाउन कर ले रहा हूँ, एंड दैट यू कैन सी नाउ इट इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो ये आपका नॉर्मल मोड है, ठीक है। अब सेकंड जो है वो है ड्रॉ कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बटन दबा रहा हूँ जहां मुझे चाहिए, ऑटोमेटिकली वहां मॉलिक्यूल्स आ रहा है, ये ड्रॉ कंटिन्यूअस है। और अगर मैं किसी लाइन पे डबल क्लिक कर दूं तो वहां डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये ड्रॉ कंटिन्यूअस मोड है। एज पर योर एक्सपर्टी आप इसको गवर्न करिए। देन ड्रॉ जिगजैग, देखिए तो ये जिगजैग मोड में आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बटन दबा के रखी हुई है, ठीक है, और मैं जस्ट माउस को इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जिगजैग जिगजैग आ रहा है, ठीक है। देखिए चेन आ गई, और ये जो ये क्लिक है, these are all clicks. So click मोड और जिगजैग मोड में फर्क है। तो अगर आपका बड़ा मॉलिक्यूल है, खासकर लिपिड है कोई, तो आपको ये कंटिन्यूअस मोड यूज करना पड़ेगा। देन यहाँ पे है स्टीरियो बॉन्ड्स, बहुत सारे एटम्स में सॉरी मॉलिक्यूल्स में स्टीरियो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टीरियो बॉन्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स है, ये अनडिफाइंड स्टीरियो बॉन्ड्स है। इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पे दी है। नाउ हमारा मेन एम जो है वो है ड्रग बनाना है। तो ड्रग बनाने के लिए आपके पास में कोई लीड मॉलिक्यूल होना चाहिए, यानी आपको एक ड्रग बनानी चाहिए, ठीक है। तो ड्रग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रग बनाने जाएंगे,
चलिए ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। कौन सा ड्रग है? एस्पिरिन। हाँ, एस्पिरिन खाते हैं ना सिरदर्द का। चलिए ये स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी होते हैं, देखिए रेडीली अवेलेबल है, ठीक है, पर हमको ऐसा नहीं करना, हमको तो हमारा मॉलिक्यूल बना के देखना है, ठीक है। चलिए बना के देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये कौन सी रिंग है? कौन सी रिंग लग रही है? दिख रही है यहाँ पे? ऐसे दिख रहा है ना यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर? देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ आ गया, देखिए क्लिक करिए, देखो बिल्कुल वैसे ही बन गया। देन यहाँ से आगे लेके गए हैं ओ बॉन्ड, राइट, ओ है। तो सबसे पहले हम लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये इस लाइन पे आना, ये जो ज्वाइन होता है ना, ये ज्वाइन, जब तक ये बॉक्स नहीं आता तब तक माउस की लेफ्ट बटन दबा के नहीं रखना, दबाना नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तभी उसको लेफ्ट बटन दबानी है और पुल करना है, ठीक है। देखिए मैंने उसको पुल कर दिया एंड छोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है? ये कौन है? कौन सा ये है? CH3 है, राइट। हमको क्या चाहिए? O। सो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? कार्बोक्सिल ग्रुप है। नहीं, इसको रिप्लेस करना है ना, तो O सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। अभी हम बाय डिफॉल्ट कौन सी सिलेक्शन में? CC के सिलेक्शन में, यानी कार्बन कार्बन सिलेक्शन हो जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा? O। बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? O दिख रहा है आपको? समझा? कन्वर्ट कर दिया ना मैंने इसको, देखो ना, O कर दिया। अब यहाँ से आगे की चेन लेके जाना है, यहाँ डेफिनेटली C होगा, ठीक है। ये है COOCH3, राइट। तो यहाँ से पहले चेन खींच लीजिए, चेन खींचने के बाद यहाँ OH आ गया। अब हमको O की जगह क्या चाहिए? C, इसलिए CH3 कर दो, ठीक है। फिर यहाँ मुझे और एक ये चाहिए बॉन्ड, तो मैं उसको खींच लेता हूँ। इसमें डबल क्लिक कर देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ मुझे फिर से O सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखिए आ गया, जम गया क्या? है ना, बिल्कुल O आ गया। अब यहाँ पे कौन है? CH3, राइट, CH3। तो CH3 के लिए मुझे यहाँ फिर से C तो है ऑलरेडी, यहाँ आगे खींचेंगे, यहाँ O हो गया, उसकी जगह क्या चाहिए? क्या चाहिए? CH3। हाँ CH3 क्लिक करेंगे। बन गया क्या? पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, एग्जैक्ट दिख रहा है ना वैसे ही? यस सर। कोई डाउट है, कोई एरर है? देख लो एक बार, कोई एरर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। अब ऊपर वाला पार्ट से बनाते हैं। देखिए जैसे ही बॉक्स आएगा लेफ्ट क्लिक करेंगे, एक एरो पुट अप कर देंगे, CH3। फिर यहाँ से एक बॉन्ड इधर आएंगे, O लेना है आपको, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। फिर यहाँ से फिर से C का सिलेक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे और यहाँ पे फिर से O लेना पड़ेगा, O देखो आ गया, जम गया, स्ट्रक्चर बन गया क्या? स्ट्रक्चर बन गया है? यस सर। कोई एरर लग रहा है क्या? देखो एक बार, कोई एरर है इसके अंदर? नो सर। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करना। सबसे पहले प्रोसीजर क्या होती है, जब भी आपका मॉलिक्यूल कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है।
सिलेक्ट करने के बाद में आप उसको ऑप्शंस में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे, ठीक है। टूल्स में जाके क्या करना है, क्या करना है, क्लीन स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए जैसे मैंने उसको क्लीन किया, उसने खुद को बराबर अरेंज कर लिया है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है ना। देखो यहाँ एसपीडी में बिल्कुल हमारे सामने का एसपीडी, कोई चेंजेस है क्या? नहीं है, एग्जैक्ट है ना। तो जो ड्रग बैंक वाले ने बनाया है वैसे हमने भी बना के दिखाया है यहाँ पे, देखो। अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्या है? C9H8O4। H8O4। हाँ, तो अब इसका भी उतना ही आना चाहिए, C9H8O4। सबसे पहले उसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कैलकुलेट, ठीक है, कॉम्पोजिशन या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया, आगे के बराबर आ गया ना, C9H8O4 करेक्ट है, यस सर। बिल्कुल करेक्ट है, यानी हम बराबर चल रहे हैं। अब हम आगे की चीज देखते हैं। अब हमने उसका ये नंबर देखा था, याद होगा तो, स्माइलीज दिखी थी और सैश नंबर देखा था, याद है, या फिर आईयूपीएसी नेम देखा था। चलिए इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं पहले। ये है ना आईयूपीएसी नेम, आ गया, क्या है, 2-एसिटाइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटाइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। अब हमने भी 2-एसिटाइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड बनाया है कि हमको चेक करना पड़ेगा, बराबर है ना, है ना। चेक करना पड़ेगा ना। तो चलिए सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करने के बाद में टूल्स में जाएंगे, ठीक है, और जनरेट कैलकुलेट में जाएंगे, कैलकुलेट में नहीं, जनरेट में आएगा, जनरेट में आएगा, जनरेट नेम फॉर स्ट्रक्चर क्लिक करिए। आगे क्या, बराबर है, यस सर। तो जम रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं। अगर आपको किसी ने पूछा कि किसी ड्रग का, किसी मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम निकाल सकते हो क्या, मान के चलो कल फार्मेसी डिपार्टमेंट में या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको जॉब लगने वाली है एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एज अ फार्मेसी या फार्माकोजेनोमिक एक्सपर्ट, तो आपको तो ये आना चाहिए कि नहीं। तो आपको जम रहा है ना कि धीरे धीरे क्लियर आइडिया एकदम कि हाँ मैं बना सकता हूँ, देखिए बराबर यहाँ पे बना लिया। फिर ये स्माइलीज होती है, ठीक है, स्माइलीज भी बना सकते हैं यहाँ से, देखिए जनरेट में आएंगे, स्माइलीज देखिए, स्ट्रक्चर्स फ्रॉम स्माइलीज, ठीक है, देखिए अच्छा स्ट्रक्चर फ्रॉम स्माइलीज, जनरेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें, टूल्स में जाएंगे, जनरेट स्माइली नोटेशन, देखिए बिल्कुल उसका स्माइली नोटेशन आ गया। ये और ये थोड़ा अलग लग रहा है पर है वही, ठीक है, इसका सिर्फ अनोटेशन अलग अलग है, ठीक है, ये और ये सेम है। आप बोलोगे सेम कैसे सर, अलग लग रहा है, पर है नहीं, वो अलग नहीं है, वो सेम है, ठीक है। इससे यही बनेगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर ने अलग तरीके से उसको बनाया है, हमारे सॉफ्टवेयर को एक अलग स्टाइल से बनाता है, ठीक है। तो स्माइलीज हमने बना ली उसकी, पहले सिलेक्ट कर लेंगे, हाँ जनरेट
फिर उसकी NCHI का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देखिए ये देखिए बिल्कुल वैसे ही देखो 1SC9H8O4C16 कितना सही, बिल्कुल वैसा का वैसा। यानी अगर आपको कल जाके कोई ड्रग डाटाबेस बनाना है या लाइब्रेरी बनानी है तो आराम से बना सकते हैं, देखिए यहाँ अच्छे से। तो इस तरह से आप किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसका नाम पता कर सकते हैं, उसकी स्माइलीज बना सकते हैं, उसका CHI कीज बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, पर इसमें एक्सपर्ट की आपकी जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहो तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांटेड टू डू यू कैन डू। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब आफ्टर डूइंग दिस रेडी है आपके पास मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है 2 डायमेंशनल, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आप जो भी इसमें ड्रॉ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में वो 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो जब 2 डायमेंशनल है तो इसके पास खुद की एनर्जी है या नहीं है? No, sir. इसके पास खुद की एनर्जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसको अपनी खुद की एनर्जी कैलकुलेशन करने के लिए ये स्ट्रक्चर को 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको 3D में कन्वर्ट जरूर करेंगे, पर उसके पहले उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, अब जब भी आप कोई ड्रग केमिकली सिंथेसाइज करते हैं, मान के चलिए आपने एस्पिरिन बनाई। ठीक है, तो एस्पिरिन ड्रग जो है वो आप किसी एटम सॉरी किसी मॉलिक्यूल्स को, लेकिन 2 से 3 मॉलिक्यूल या 2 से 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बनाओगे, राइट? है ना, हो सकता है उसमें कार्बोक्सी हो, हाइड्रोजन हो, बेंजीन हो, ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जोड़ के आप अल्टीमेटली एक एस्पिरिन बनाओ। जब भी एस्पिरिन बनाएगा तो उसके साथ में बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, राइट? तो आप देखना चाहोगे कि आपके सिंथेसिस प्रोसेस में कोई बाय प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा। तो अगर कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा होगा तो डिटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो डिटेक्ट होना है या पता करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि एस्पिरिन के अलावा आपके पास बायोलॉजिकली क्या मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो उसका कंटामिनेशन होता है। अगर कोई बाय प्रोडक्ट उसके साथ बन रहा है उसका कंटामिनेशन, एस्पिरिन के साथ साथ में वो मॉलिक्यूल भी आपके साथ में ड्रग में रहेगा। इसलिए ये ड्रग जैसी बन जाती है तो इसका एक स्पेक्ट्रा क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं NMR स्पेक्ट्रा। पढ़ा होगा ना NMR स्पेक्ट्रा? कोई फुल फॉर्म बता सकता है? NMR फुल फॉर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, राइट, यू आर करेक्ट। सो NMR स्पेक्ट्रा इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। वो 2 लेवल पे होता है, वो कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो कार्बन तो उसका NMR स्पेक्ट्रा जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद में पहले सिलेक्ट करिए, टूल्स में जाएं, जनरेट, आपको उसकी NMR जो स्टाइल है वो पता करनी चाहिए। NMR में कैसे दिखेगा, दैट यू नीड टू चेक। यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि वो एग्जैक्टली कहाँ होगा। ठीक है, फिर उसकी लॉग पी वैल्यू है, देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, कैलकुलेट लॉग पी वैल्यू। लॉग पी वैल्यू क्या बता रहा था तभी? कौन सी वैल्यू बता रहा था लॉग पी? याद होगा तो क्या वैल्यू थी? लिपोफिलिसिटी, याद होगा तो। लिपोफिलिक है या नहीं है ये मॉलिक्यूल, बताइए वैल्यू कितनी आ गई? 1.19 प्लस। ये लिपोफिलिक है या नहीं है बताइए?
था ना हमने तब? लेस देन 5, हाँ, तो ये लेस देन 5 है ना? 1.19 यानी लिपोफिलिक है, इसीलिए ड्रग है ना? यानी इसने लिपोफिलिसिटी का जो है रूल फॉलो किया है। ड्रग को लिपोफिलिक होना ही चाहिए, ठीक है? ये रूल उसने फॉलो करना ही चाहिए और उसने ये रूल फॉलो किया है, यानी इसीलिए ये मॉलिक्यूल ड्रग है, ठीक है? देन ये उसका ECHI है, मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है? ये तो समझ में आ गया। देन उसका नेम हमने पता कर लिया था, तभी 2 आइसोटॉप्स विद एंजाइम, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से पता चल गया। देन उसका टेम्पलेट विंडो है, ठीक है? ये बात पढ़नी कॉम्प्लेक्स है। पबकेम में आप जाके चेक कर सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है? पबकेम में एक वेबसाइट है, मैंने कल बताया था कि आप ड्रग बैंक में भी जा सकते हो, उसके साथ पबकेम में भी जा सकते हैं, तो आप पबकेम में भी इसको सर्च कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अगर आप कोई जीनाइन या नोवेल निकाल रहे हो तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि सर्च करने के बाद में आपको मॉलिक्यूल वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये 2D में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है? अब 2D में कन्वर्ट होने के बाद में इसको सेव करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है? तो जब हम सेव करेंगे तो फाइल में आना है, फाइल में आने के बाद में सेव एज, ठीक है? सेव एज। तो जब सेव हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखते देना है, ध्यान देना है। आप उसको पहले अपने लोकेशन में डाल दीजिए जहाँ पे भी आपको डालना है, जैसे लाइक मैं एक्सप्लेनिंग में पुट कर रहा हूँ मैं, ड्रग एक्सपायरिंग, ठीक है? और जिस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं वो याद रखिए, कौन सा है? केम्स 2.0 यानी .sk2 फॉर्मेट, याद रखिए, ठीक है? .sk2 फॉर्मेट में है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर, ये जो .sk2 फॉर्मेट है, ये एक 2D स्ट्रक्चर सेविंग फॉर्मेट। आप चाहो तो उसको CDX फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे CS मैं इस फॉर्मेट में सेव करूंगा, कौन से? CS फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि मुझे इस मॉलिक्यूल को केमड्रॉ में ओपन करना है, ठीक है? बाद में, इसलिए मैंने इसको भी 2D फॉर्मेट में ही .cdx फॉर्मेट में सेव किया। ये .cdx फॉर्मेट जो है ये केमड्रॉ कंपैटिबल है, यानी केमड्रॉ का सॉफ्टवेयर इस फाइल को ओपन कर सकता है, ठीक है? मैं इसको सेव कर देता हूं, तो ये मॉलिक्यूल अब मेरे पास सेव हो चुका है, ठीक है? अब ये मॉलिक्यूल सेव हो गया, अब मैं नया मॉलिक्यूल बनाऊंगा, न्यू, ठीक है? सेव हो गया, अब नया टाइप का मॉलिक्यूल बनाइए। अब नए टाइप का जो मॉलिक्यूल बनाना है हमको वो है, समझ लो किसी का पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आप पॉलीपेप्टाइड चेन भी बना सकते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस भी बना सकते हैं, ठीक है? वो करने के लिए आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, ठीक है? कहाँ से आएंगे? यहाँ दिख रहा है आपको ओपन टेम्पलेट विंडो, ओपन टेम्पलेट विंडो में आएंगे और यहाँ पे आपको अलग अलग है, देखिए अल्कलॉइड्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, DNA RNA, ठीक है? तो चलिए पहले अमीनो एसिड्स का देखते हैं। हमारे पास में अमीनो एसिड्स है, आप जो अमीनो एसिड को लेना चाहते हैं वो अमीनो एसिड को यहाँ से ले सकते हैं। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, ठीक है? स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो हमको एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और हिस्टीडीन, ठीक है? और ठीक है, ये बनाना कौन सा है? एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, हिस्टीडीन और लिग्नाइन। चलिए बनाते हैं। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? एलानिन। एलानिन, यस। एलानिन। हाँ,
अब मुझे ये बताइए, मैं ये एलानिन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब मेरे पास में एलानिन मोड आ गया है, दिख रहा है? ठीक है, एलानिन मोड में आ गया, दिख रहा है? सबको दिख रहा है एलानिन? सबको दिख रहा है ना? अब मुझे ये बताइए, पेप्टाइड बॉन्ड में कौन कौन होता है? पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम क्या है? ये बताओ। पेप्टाइड बॉन्ड में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? CONH होता है ना? आया ना? बराबर हूँ या नहीं हूँ? CONH बॉन्ड यानी पेप्टाइड बॉन्ड है या नहीं? अरे हाँ या ना? कोई बोलने को तैयार नहीं है। CONH होता है या नहीं होता है? यस सर। होता है सर। होता है ना? होता है ना? वही तो पूछ रहा हूँ इतने टाइम से। अब मुझे ये बताइए, CO यानी कौन सा पार्ट? इसमें से कौन सा पार्ट CO? कौन सा पार्ट? थोड़ा ध्यान से देखिए। ये वाला पार्ट है, देखिए CONH, देखिए ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, C डबल बॉन्ड O और उसको लगा हुआ है OH, ये COOH बॉन्ड है, बराबर है? तो COOH बॉन्ड में ये OH जो है ये आपके NH2 के साथ में रिएक्ट करेगा अगले वाले अमीनो एसिड के साथ, ठीक है? और ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है, समझा? तो ये हो जाएगा, ये OH हट जाएगा और यहाँ NH अटैच हो जाएगा, यानी OH को कॉम्पीट करेगा कौन? NH2, और वो बन जाएगा CONH, समझा क्या? तो अगला जो अमीनो एसिड रहेगा वो कौन सा लेना है हमको? याद है क्या? याद है, वैलिन है, फिर यूसिन, वैलिन, वैलिन यानी B। देखिए यहाँ पे कौन है? ये देखिए, ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ NH2 है और COOH है। कौन सा पार्ट लगाना पड़ेगा? कौन सा पार्ट लगाना पड़ेगा? NH2 हाँ, किसको लगाएंगे? क्या किसको लगाएंगे? OH को वेरी गुड, लगाएंगे। OH को लगाएंगे। हो गया क्या कनेक्ट? नहीं हुआ, ठीक है, कनेक्ट नहीं हुआ ना? एडिट नोट्स, बन गया? हो गया ना? बना या नहीं बना? देखिए ना, CH3NH2, ये कौन है? एलानिन, और ये कौन हो गया? वैलिन। वैलिन अटैच्ड हो गया, एलानिन और वैलिन अटैच्ड हो गया हमारे पास में, क्लियर? अब अगला कहाँ अटैच्ड होगा बताइए?
वैलिन के OH की जगह यहाँ करेक्ट, किससे अटैच करना पड़ेगा? NH2 वेरी गुड, समझ में आ गया आपको? ये आना चाहिए किसी को। आप अपन हम जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको प्रोटीन भी पढ़ना आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स को स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। ये डिजाइनिंग है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अभी अगला जो है वो है, किसको लाना है आपको? ल्यूसीन, ल्यूसीन को लाना है। ल्यूसीन 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 ल्यूसीन, ठीक है। ल्यूसीन का देखिए स्ट्रक्चर कहाँ से, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है। कहाँ लेके जाना है? कौन सी चीज कहाँ अटैच करनी है? OH को कौन अटैच करना है? NH2, राइट। और ये अभी अटैच नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले इसको घुमाना पड़ेगा, इसको रोटेट करेंगे। NH2 से OH के पास आ गए हैं, इसको थोड़ा पुश अप करेंगे नीचे। बन गया, CONH बन गया। इस तरह से हम अटैच करते जाएंगे। अब ये बहुत गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो बन गया बराबर, उसको पहले क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए पहले से सिलेक्ट कर दो और टूल्स में जाके क्लीन स्ट्रक्चर, देखिए अरेंज हो गया, उसको प्रॉपर अरेंज कर लिया। ये भी अब आपका पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें 3 अमीनो एसिड जुड़ गए हैं, ठीक है। कौन से अमीनो एसिड से? आपके पास है एलानिन, वैलिन और ल्यूसीन यहाँ जुड़ गए। इस तरह से आप पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते जाएंगे। इसका भी टू स्ट्रक्चर है, इसको भी सेव करेंगे फाइल से अमाइनो एसिड 2, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट में सेव करना है, CDX से। तो ये हो गए सेव, अमीनो एसिड भी सेव हो गए और ड्रग भी सेव हो गया, ठीक है। उसी तरह आप स्ट्रक्चर DNA के बना सकते हो, ठीक है। DNA के स्ट्रक्चर से यहाँ से बना सकते हो, देखिए, ठीक है। जितना भी DNA, डीऑक्सीराइबोज है, डाइऑक्सीफॉस्फेट, यूरासिल, सब है आपके लिए। इसके साथ साथ में इसमें और एक चीज है कि आप लैपिड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसमें पूरा डिजाइन भी बना सकते हो, जैसा चाहिए वैसा डिजाइन आप बना सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आप बता सकते हो, जैसा चाहिए वैसा रिएक्शन आप बता सकते हो। कितना सुंदर है। आप जैसे लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप भी बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही है। तो ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, बहुत प्रोफेशनली कर सकते हो। आप MSc में प्रोजेक्ट करोगे या कुछ करोगे तो आप इसका इस्तेमाल करिए, ये बहुत काम की चीज है। एकदम इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने कुछ तो इनोवेटिव दिखाया है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इसको शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसा चाहिए वैसा आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा मेन मोटो क्या था कि इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ठीक है।
तो हमने 2D स्ट्रक्चर्स बना लिए, अब हमको उसके 3D स्ट्रक्चर्स देखने हैं, ठीक है। ठीक है, अब उसका 3D स्ट्रक्चर बनाना है। तो 3D स्ट्रक्चर के लिए आप उस फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं जो फाइल अभी आपने सेव की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका 3D व्यूअर भी है आपके पास, दिख रहा है 3D व्यूअर। यहाँ क्लिक करना है, ये है आपका 3D व्यूअर, ठीक है। इसमें अपलोड करिए आपकी फाइल ओपन। हमने उसको सेव किया हुआ है डेस्कटॉप पे फाइल फॉर्मेट स्ट्रीमिंग में, ठीक है। और यहाँ वो फाइल्स मांग रहा है, ठीक है। कौन सी फाइल मांग रहा है? ACD 3D डॉक्यूमेंट, MDL, मोपैक या गाउसियन, ठीक है। हमने इसी फॉर्मेट में सेव की थी क्या? स्ट्रक्चर्स को इस फॉर्मेट में सेव किया था क्या? नो सर। इसलिए वो यहाँ दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो हमको वापस जाना पड़ेगा, ये फॉर्मेट में हमने सेव नहीं किया। कौन सी फॉर्मेट मांगा था एक बार देख लेते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर की एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उस हिसाब से ही वो काम करेगा। फाइल ओपन, याद रखिए ACD 3D, MDL या मोपैक, ठीक है। तो वापस मैसेज लिया ना, तो मैसेज कहीं लेंगे। स्माइली पूरा कर देते हैं। क्या है आपके स्क्रीन, ठीक है। इसको फाइल सेव एज, हमको कौन से फॉर्मेट में सेव करना है? ACD। दिख रहा है यहाँ पे वो फॉर्मेट, ये है ना MDL, ठीक है। चलिए देखिए आ गया, ये है आपका 3D व्यूअर। मॉलिक्यूल आपका 3D फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन मूव कर रहा है धीरे धीरे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है, याद रखिए। इसलिए अब इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास, इसलिए व्यूअर है। आप बस उसको देख सकते हैं किस तरह से वो दिखता है, उसका चार्ज देख सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बस, ठीक है। और कल जब हम इसमें केम ऑफिस देखेंगे तो आप देखना उसको बहुत अच्छे से आएगा। 3D ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, देखिए ऑप्टिमाइज हो गया। ये एक्चुअली उसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। देखिए इसमें मिनिमम एनर्जी कैलकुलेशंस नहीं, ठीक है।
यहाँ पे कहीं पे भी आपको मिनिमम एनर्जी कैलकुलेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ 3D व्यूअर है, ठीक है, ऑप्टिमाइजर नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो कमर्शियल सॉफ्टवेयर मैं आपको कल समझाऊंगा कि वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो आज इसको डाउनलोड करिए और स्ट्रक्चर बनाना शुरू करिए। पहला स्ट्रक्चर आप एस्पिरिन से शुरू करिए, एस्पिरिन बनाते आना चाहिए, कोई गड़बड़ हो रही है क्या देखिए, और स्ट्रक्चर वैसा ही आना चाहिए, वही फॉर्मुलेशन आने चाहिए, सब कुछ वैसा ही वैसा आना चाहिए। अगर वहां तक आप आ गए तो समझिए कि आपको वो आ गया है और आप आराम से स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? सिंपल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए आज, और आज ये स्ट्रक्चर डेफिनेटली बना लीजिए, ठीक है। विल स्टॉप हियर, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। क्वेश्चंस होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस है? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। I think there is no question. We'll stop here and we'll meet tomorrow. Okay? चला